Hello and welcome everyone to this lecture of Law of Torts. I am Santosh Baliga and let us continue from where we had left in the last lecture. So, without wasting any time, let's start off with the topic of vicarious liability of the state. So, let us understand it from the context of the position in England and the position in India. First of all, the vicarious liability of the state in the position of England says that the crown could not be sued in tort either for wrongs actually authorized by it or committed by its servants in the course of their employment. So this was the position in the common law in England, that the crown means the state in England, that is the queen, the crown could not be sued in tort either for wrongs actually authorized by it or committed by its servants in the course of their employment. With the passing of the Crown Proceeding Act 1947, the Crown is liable for the torts committed by its servants just like any private individual. So there has been a change since the Crown Proceeding Act 1947, where it is now said that in England also, the Crown is now vicariously liable for the torts of its servants. So this is the position in England. The Indian position is a little bit different. What Indian position basically says is that till 1947, India was also adopting the same position as the Crown was adopting in England. But post the constitution coming into place, there was a very clear, if we look into the module, Article 300 clearly stated that provides that first that the government of India may be sued or may sue by the name of the Union of India, and the government of the state may sue or be sued by the name of the state. So this gives the power for any person to sue the government, as well as the government can sue any other person. So this can be at the central level, that is the Union of India, as well as at the state level. And when we speak about state comes under as per the definition provided in Article 12 of the Constitution. So whenever we are speaking about state, it is about Article 12 of the Constitution. This means state means what all comes over here: central government, state government. Then you have all the different departments of government. Okay, so all these departments and everybody will constitute as a state. Now the question over here is whether state is liable for any acts done by its servants. Okay, whether state is liable for any acts done by its servants. That means whether state is vicariously liable or not. That is the question that we are currently trying to address. Now, see, the position in India says that when a case of government liability in tort comes before the courts, the question is whether the particular government activity, read the words very, very carefully over here, because this is the crux of the whole matter. The government activity which gave rise to the tort was a sovereign function or a non-sovereign function. Okay, if it is a sovereign function, it could claim immunity from the tortious liability, otherwise not. Okay, so this is very important. Once again, I am going to read this. When a case of government liability in tort comes before the courts, the question is whether the particular government activity which gave rise to tort was a sovereign function or a non-sovereign function. If it is sovereign function, then it could claim immunity. That means no case can be no cause of action can be against the government if it is a sovereign function. If it is non-sovereign function, then in that case tortious liability can arise. Okay, so let me summarize this very, very simply. Any state, whether it is having any vicarious liability, that depends on the function. If the function is a sovereign function or it is a
non-sovereign function. So if it is a sovereign function, in that case the state will have an immunity. And no action shall lie. Whereas if it is a non-sovereign function, then in that case action can arise. So tortious liability will arise only if it is a non-sovereign function. Now what is non-sovereign function? What is a sovereign function? There are case laws, there are 3 case laws that we have to read over here. But in a very simple language, if I tell you, sovereign function is basically any function that only a government can perform. Only an state can perform. Normal individuals or private individuals cannot perform these activities. It may be like administration work, then defense of the country, okay, then policing work, or you can call this as law and order. So all this work is performed only by the state, and such nature of functions are called as sovereign functions, and they have full immunity. You cannot charge them with any tortious liability. Okay. In case of non-sovereign functions, these are those functions which can be undertaken by private individuals also. Okay. So अगर हमको ये पार्ट हमको अगर समझ में आ गया है, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है विकारियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये अपने को समझ में आ गया रहना चाहिए कि अगर सॉवरेन फंक्शन होगा तो इन दैट केस क्या होगा, देयर इज़ नो एक्शन दैट लाइज, इम्यूनिटी है, 100% इम्यूनिटी है. अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन है तो देन देयर इज़ नो इम्यूनिटी दैट इज़ प्रोवाइडेड, इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, और उस केस में क्या हो सकता है, स्टेट के ऊपर वाइकेरियस लाइबिलिटी लागू हो जाएगा. ओके. सो दिस, अगर ये चार्ट आपको, ये सिंपल सा चार्ट अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी सिंपल कॉन्सेप्ट है. अब हमें जो है दो मेन केस लॉस है और एक और केस लॉ है जिसको हमें समझना है, जिससे कि एक सॉवरेन नॉन सॉवरेन का भी हमें समझ में आ जाएगा, एंड व्हाट इज़ द कोर्ट लुकिंग इनटू इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड. सो दिस केस लॉज आर, वन इज़ द फर्स्ट वन इज़ द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती. ओके, वर्सेस विद्यावती. अब इस केस में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट का जो एक कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफ उदयपुर, देयर वाज अ कलेक्टर ऑफ उदयपुर, उसका जो ड्राइवर है, ओके, ड्राइवर ऑफ ए गवर्नमेंट जीप विच वॉज बीइंग यूज्ड बाय द कलेक्टर ऑफ उदयपुर, नॉक डाउन ए पर्सन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ बाय द साइड ऑफ द पब्लिक रोड. और वो एक्सीडेंट करने की वजह से जो इंजर्ड पर्सन था वो 3 दिन के बाद क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन द हॉस्पिटल. The legal representatives of the deceased sued the state of Rajasthan. तो जो legal representatives थे of the person who died, जो of the victim, उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस किया on the state of Rajasthan and the driver, both of them, for compensation or damages for the tortious act committed by the driver. ओके. सो बेसिकली फैक्ट ऑफ द केस समझ में आ गया आपको. ड्राइवर था कलेक्टर ऑफ उदयपुर विच इज़ हु इज़ एन गवर्नमेंट ऑफिसर का ड्राइवर था, वो जीप चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ, द पर्सन डाइड because of injury, and the legal representatives have claimed tortious liability and compensation as to the tortious liability in the court of law. Okay, this is the fact of the case. It was found by the court as a fact that the driver was rash and negligent in driving the jeep, and that the accident was a result of such driving on his part. मतलब कोर्ट ने ये फाइंड आउट भी कर लिया कि ये जो ड्राइवर है उसके तरफ से क्या हो चुका है, रैश ड्राइविंग हुआ, नेग्लिजेंस हुआ, एंड बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर व्हेन ही वाज ड्राइविंग ये एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है. द सूट वॉज डिक्रीड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड ऑल्सो बाय द हाई कोर्ट. द अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजमेंट वॉज डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जब वो ट्रायल कोर्ट में था तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि उसको डिक्री अवार्ड कर दिया, कॉम्पनसेशन अवार्ड कर दिया. फिर स्टेट ने क्या किया, स्टेट वेंट टू एन अपील इन द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने भी उसको डिक्री दे दिया. मतलब
जो कॉम्पनसेशन है वो कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर दिया. इट हेल्ड द judgment of the lower court, that is the trial court, correct. Okay, now the state has gone to the last resort, that is the Supreme Court. अब Supreme Court ने यहाँ पे क्या बोला है कि viewing the case from the point of view of the first principles, there should be no difficulty in holding that the state should be as much liable for the tort in respect of Torts Act committed by its servant within the scope of his employment and functioning as such as any other employer. But ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सॉवरिन फंक्शन रहेगा तो स्टेट लायबल नहीं होगा. अब मुझे एक बात बताइए, जीप चलाने वाला ड्राइवर क्या कोई सॉवरिन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है क्या? क्या कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकता है? क्या कोई ऐसा डिफेंस वाला परफॉर्म कर रहा है, या पुलिस वाला परफॉर्म कर रहा है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं. तो ये कोई सॉवरिन फंक्शन नहीं है, ये था नॉन सॉवरिन फंक्शन. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द स्टेट लायबल बिकॉज इट वाज ए नॉन सॉवरिन फंक्शन. सो वाइकेरियस लाइबिलिटी, यहाँ पे वाइकेरियस लाइबिलिटी के वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो स्टेट को भी ऑपरेटिव हो गया. ओके, वाई? बिकॉज दिस वाज ए नॉन सॉवरिन function. This is the most important part. ओके, तो आपको जो भी केस स्टडी दिया रहेगा, आपको खाली उसमें डिटरमाइन करना है कि ये सॉवरिन फंक्शन है या नॉन सॉवरिन फंक्शन है. अगर नॉन सॉवरिन फंक्शन है तो आप बिंदास होकर उसमें क्या कीजिए, स्टेट को लायबल ठहरा दीजिए. अगर सॉवरिन फंक्शन है तो इन दैट केस स्टेट को इम्यूनिटी है, तो स्टेट विल नॉट हैव एनी लायबिलिटी इन दैट केस. लायबिलिटी कैन बी विद दैट पर्सन हु हैज डन, द ड्राइवर can be liable, but if it is sovereign function then in that case state cannot be liable. ये पार्ट क्लियर है. ये था कौन सा केस था? ये केस लॉ का नाम याद रखना ज़रूरी है. ये केस लॉ का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती. सुप्रीम कोर्ट का केस है, 1962 का केस है ये. ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती. नाउ नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारे पास कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सो एक जो केस लॉ हमने अभी किया वो कौन सा था? नॉन सॉवरिन फंक्शन का था. अब दूसरा जो केस लॉ हम लोग करेंगे, ये कौन सा करेंगे हम लोग? कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी विच इज़ कवरिंग एंड सॉवरिन फंक्शन. और सॉवरिन फंक्शन में अपने को पता है क्या हो जाता है, मैं अभी नहीं बोलूँगा, केस लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग उसी कंक्लूजन पे आएंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, कस्तूरी लाल एंड स्टेट ऑफ यूपी में एक पर्सन था. वो पर्सन रात के टाइम पे ही वॉज कैरिंग some amount of gold with him, ठीक है, एंड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. रात के टाइम पे पुलिस ने उसको चेकिंग के लिए लिया. जब चेकिंग के लिए लिया तो उसमें गोल्ड मिला, तो पुलिस को ऐसा सस्पेशन था कि ये जो गोल्ड है ये चोरी का गोल्ड हो सकता है, एंड हेंस उन्होंने क्या कर दिया, वो गोल्ड को जब्त कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट डे व्हेन द पर्सन प्रूव्ड हिज इनोसेंस टू दी गवर्नमेंट सेइंग कि भाई ये मेरा खुद का गोल्ड है, ये कोई चोरी का नहीं है, ये प्रूव्ड हिज इनोसेंस. और जब वो गोल्ड जो सामान जो जब्त किया था वो लेने के लिए गया तो उसने देखा कि उसमें गोल्ड था ही नहीं. वो जो गोल्ड था वो बेसिकली वो जो पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल ने लेके वो भाग गया और वो आउट ऑफ कंट्री भाग गया. ठीक है, तो ये गोल्ड का नुकसान हो गया. तो व्हाट ही डिड इज़ दैट ही वेंट फॉर ए सूट अगेंस्ट द स्टेट ओवर हियर, दैट इज स्टेट ऑफ यूपी, सेइंग दैट मेरा गोल्ड जो है वो डैमेज हो गया या लॉस हो गया उसका, एंड उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए. स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट, बिकॉज वो जो पर्सन था वो क्या था, वो स्टेट का पुलिस ऑफिसर था, स्टेट का पुलिस कांस्टेबल था जो कि लेके भाग गया है. ओके, नाउ पूरा केस लॉ आपने सुना, फैक्ट समझ में आ गया आपको. अब स्टेट का कंटेंशन ऑब्वियसली यहाँ पे ये है कि ये जो लेके गया है, गोल्ड लेके गया है, वो कांस्टेबल खुद लेके गया ताकि पुलिस स्टेशन को कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था. एंड ऑल्सो जो भी एक्ट हुआ है, मतलब जो जब्त किया गया था सोना, वो एक सॉवरेन फंक्शन था ऑफ पोलिसिंग, एंड हेंस स्टेट विल नॉट बी लायबल. नाउ आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये केस में क्या होना चाहिए. क्या ये सॉवरेन फंक्शन है या नॉन सॉवरेन फंक्शन है? जब्त जो हुआ है क्या वो सॉवरेन फंक्शन था या नॉन सॉवरेन फंक्शन था? तो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट के पास गया.
when the matter was taken to the Supreme Court, the court found, on an appreciation of the relevant evidence, that the police officers were negligent in dealing with the plaintiff's property. पुलिस ऑफिसर्स को वो प्रॉपर्टी को बहुत संभाल के रखना चाहिए था. दिस पर्टिकुलर अनफॉर्चुनेट इवेंट शुड हैव नॉट हैपेंड कि कोई लेके उसको भाग गया. एंड ऑल्सो दैट दे हैड ऑल्सो नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशंस. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का देखिए यहाँ पे क्या बोलना था. सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्लेंटिफ्स क्लेम ऑन द ग्राउंड that the act of negligence was committed by the police officers while dealing with the property of Ralia Ram, which they had seized in exercise of their statutory powers. The power to arrest a person, to search him and seize property found with him are powers conferred on the specified officers by the statute, and in the last analysis they are powers which can be properly categorized as sovereign powers. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया. सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकग्नाइज्ड कि यहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ है पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से. ठीक है, दे हैव नॉट इवन कंप्लाइड विद द यूपी रेगुलेशन, यूपी पुलिस रेगुलेशंस ऑल्सो. सुप्रीम कोर्ट ने प्लेंटिफ का जो कंटेंशन था उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि स्टेट का कोई लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो पुलिस एक्ट कर रहा था, द पुलिस वॉज एक्टिंग अंडर एन सॉवरेन फंक्शन. तो वो सब फंक्शंस को हम लोग क्या करके देखते हैं कि वो सॉवरेन फंक्शन है, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का. और इस वजह से जो प्लेंटिफ का जो क्लेम था फॉर डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन, दैट वाज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. क्या इसका मतलब ये है कि जस्टिस जो भी पर्सन है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है. स्टेट ऑफ यूपी विल नॉट बी पनिश्ड फॉर दैट. स्टेट ऑफ यूपी विल नॉट बी लायबल, बट द पर्सन्स हु आर कल्प्रेट्स, जो कल्प्रेट लेके भागा है, उसका पर्सनल लायबिलिटी हो सकता है इसमें. ठीक है, तो ये केस भी समझ में हमको आया. तो ये केस से हमको दो चीज़ें समझ में आ गई. एक कि अगर सॉवरेन फंक्शन है, इन दैट केस क्या हो जाएगा? इन दैट केस लायबिलिटी नहीं अराइज होगा. एंड इन केस ऑफ नॉन सॉवरेन, अगर मैं यहाँ पे ही लिखूँ सॉवरेन फंक्शन के अंडर, केस लॉ का नाम क्या था हमारा? कस्तूरी लाल. मैं अलग कलर भी डाल देता हूँ. इट इज़ कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. यहाँ पे स्टेट इज़ नॉट लायबल, and in case of non-sovereign function, you can write state of Rajasthan versus Vidyawati. यहाँ पे state was held liable. ठीक है, तो ये दोनों केस लॉ हमको याद रखना है. आई होप कि दोनों केस लॉ आपको अच्छे से समझ में आया, और ये जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेन नॉन सॉवरेन का, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया. अब एक और केस लॉ है जो कि यहाँ पे ही कवर किया हुआ है हमको, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द केस लॉ नेम इज एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज़ AP. ओके, यहाँ पे बेसिकली ये डिस्टिंक्शन दिया हुआ है कोर्ट ने बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस. तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, जस्ट अ सेकेंड. वन ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन इफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वन ऑफ द टेस्ट टू डिटरमाइन if the legislative or executive function is sovereign in nature is whether the state is answerable for such actions in the court of law. For instance, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कोर्ट ने. एक्ट सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, रेजिंग द आर्म फोर्सेस, मेंटेनिंग इट, मेकिंग पीस और वॉर, फॉरेन अफेयर्स, पावर टू एक्वायर एंड रिटेन टेरिटरी आर फंक्शंस which are indicative or external sovereignty and are political in nature. Therefore, they are not amenable to jurisdiction of ordinary civil court. तो वॉर वगैरह जो होता है उसके बेसिस पे आप स्टेट को क्या नहीं कर सकते हो? आप स्टेट को टॉर्चस लाइबिलिटी के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो. उसके अगेंस्ट कोई केस अराइज नहीं हो सकता है. कोई भी सिविल कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता है. नो सूट अंडर द CPC would lie in respect of it. The state is immune from being sued, as the jurisdiction of the courts in such matters is implied
इम्प्लाइडली बार्ड। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स क्या है इस केस में, इस टाइप के केसेस में, सॉवरेन फंक्शंस में, इट इज़ इम्प्लाइडली बार्ड। ओके, सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको अच्छे से पढ़ना। लेकिन आगे देखो, यही कोर्ट आगे क्या बोलता है, बट देयर द इम्यूनिटी एंड्स, मतलब ये जो सॉवरेन फंक्शंस है वहाँ तक ही आपको इम्यूनिटी मिलेगा, उसके बाद में इम्यूनिटी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड नो लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम टुडे कैन प्लेस द स्टेट अबव द लॉ एज इट इज़ अनजस्ट or unfair for the citizen to be deprived of his property illegally by negligent act of the officers of the state without any remedy। तो स्टेट लायबल होगा अगर वो नॉन सॉवरेन फंक्शंस में करता है। आगे इसी चीज़ में आगे जो कोर्ट है वो बोलता है द डीमार्केटिंग लाइन बिटवीन द सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन पावर्स फॉर विच नो रैशनल बेसिस सर्वाइव्स हैज़ लार्जली डिसअपियर्ड। मतलब वो इतना ईजी नहीं है आज की तारीख में कि हम लोग पता लगा कि ये सॉवरेन फंक्शन है या नॉन सॉवरेन फंक्शन है, बहुत ही फाइन लाइन है उसके बीच में। बारिंग फंक्शन सच एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड रिप्रेशन ऑफ क्राइम एक्सेट्रा which are among the primary and inalienable functions of the constitutional government, the state cannot claim any immunity। मतलब ये जो डिफेंस वाला पार्ट हो गया या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाला पार्ट हो गया या मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर जैसे कि पुलिसिंग वाला काम हो गया, इन केसेस में ही स्टेट को इम्यूनिटी मिलेगा। उसके अलावा स्टेट इम्यूनिटी नहीं क्लेम कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई टॉर्ट होता है बाय द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, देन इन दैट केस द स्टेट विल बी लायबल फॉर द टॉर्चियस लायबिलिटी। ओके, तो ये केस लॉ कौन सा है, ये केस लॉ नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ बन जाता है ये भी। ये 3 केस लॉस हमको याद रखने हैं और उसमें से पहले 2 केस लॉस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम याद रखना। अगर एग्जाम में केस स्टडी आएगा तो ये केस लॉ का नाम लिख के आना ज़रूरी है। ओके, एंड इसके पॉइंट्स याद रखना अच्छे से। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, सॉवरेन फंक्शन है तो इम्यूनिटी है, अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन है तो लायबल है, बस। दिस इज़ व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज। ओके, देर आर अदर केस लॉज ओवर ऑल्सो, वन मोर केस लॉ इज देयर, जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, मैं होमवर्क करके इसको मार्क कर देता हूँ। ओके, एंड देर इज़ वन मोर केस लॉ दैट इज़ अनीता भंडारी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज़ एन केस वेयर जो बैंक रहता है, बैंक ने एक सिक्योरिटी पर्सनल को रखा है एटीएम के बाहर। एटीएम में जब पैसा भर रहे थे वो टाइम पे जो पिटिशनर है और उसका हस्बैंड वो एटीएम में पहुँचे और जो सिक्योरिटी गार्ड है मिस्टेकनली उसको ऐसा लगा कि ये लोग चोरी करने को आया है और उसने क्या किया, उसने अपना बंदूक उठा के गोली चला दिया, जिसकी वजह से पिटिशनर का हस्बैंड डाइड। Okay, now petitioner has raised a case over here against the bank, saying that bank is liable for such an act which was done by its servant, that is the security guard, and hence the bank should be liable for the tortious liability and compensation and damages देना चाहिए। यही एक केस लॉ में दिया हुआ है। अब फाइनली क्या हो जाता है, द बैंक वॉज फाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल by the court because providing a guard with the gun amounted to giving him permission to shoot when he felt that it was necessary, even though the guard had acted too vigorously in the performance of his duty। बैंक ने जब गार्ड को बंदूक दिया था वहाँ पे खड़े रहने के लिए, तो इन दैट केस जब भी कभी चोरी होता है तो उसको यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा मान के चल रहा है कोर्ट यहाँ पे। एंड हेंस बैंक इज़ ऑल्सो वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड डैमेजेस और कॉम्पनसेशन वॉज अवॉर्डेड टू अनीता भंडारी एंड अदर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। कोई भी केस स्टडी या केस लॉ को छोड़ के मत जाना इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ओके, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। यहीं पे मैं इस वीडियो को रोक लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कंप्लीटिंग अवर चैप्टर टॉर्ट्स के टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो फ्रॉम मी। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट।